بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیکن تم دیکھو گے کہ وہ کوئی مداخلت کیے بغیر تمہارا تعاقب کرتے رہیں گے۔ جو ہی تمہاری نیت میں فطور آیا وہ موت کے فرشتوں کا روپ دھار لیں گے۔ ہماری نیت اب بھی وہی ہے جو شروع میں تھی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ تم ہمیں کسی بدعہدی پر اکسانے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ تمہارے آدمیوں کو ہم پر ٹوٹ پڑنے کا اشارہ مل سکے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، اس وقت مجھے صرف سلور آئز سے غرض ہے۔ ایک بار وہ دونوں مقدس سکے مل جائیں تو نو تمہارے بارے میں سوچوں گا۔ فی الحال میں سلور آئز حاصل کرنے کے لیے تمہیں زندہ رکھنے پر مجبور ہوں۔ تم میری طرف سے مطمئن رہو، میں اپنا کام نہیں بگاڑوں گا۔ کار میں جم کلارک کے لیے میرے برابر والی پیسنجر سیٹ ہی موزوں تھی۔ ویرا پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میں نے پھرتی سے اپنا پسٹل بغلی ہولسٹر خالی کر کے بھرا ہوا پستول اسے تھما دیا۔ ویرا کے بیٹھ جانے کے بعد میں گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف والے دروازے پر گیا اور فوراً ہی اندر بیٹھ گیا۔ اس اثناء میں ہمارے پیچھے آنے والے دو ٹکڑیوں میں بٹ چکے تھے۔ دو مقامی آگے چلے آ رہے تھے اور ایک مقامی فٹ پاتھ کے سہارے لگی ہوئی دیو ہیکل لینڈ روور کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے قریب کھڑے ہوئے دو مہذب سفید فاموں کی گردنیں ہماری طرف گھومی ہوئی تھیں۔ ان کا جائزہ لینے کے لیے میں نے بالکل بھی وقت ضائع نہیں کیا، بس اپنی گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے جو کچھ دیکھ سکا وہ دیکھ لیا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے خیال آیا کہ شرف آباد میں ہمارا فلیٹ گنجان آباد علاقے میں واقع تھا۔ وہ پانچوں غیر معمولی بے جگری کا مظاہرہ کیے بغیر فلیٹ میں گھسنے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے جب تک انہیں جم کلارک کے ساتھ کسی گڑبڑ کا یقین نہ ہو جاتا۔ وہ گلی میں رک کر داخلی راستے کی نگرانی کرتے رہتے۔ اگر ہم فلیٹ میں پہنچتے ہی اول خان کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کر دیتے تو وہ اپنی نفری کے ساتھ اس گلی کی ناکہ بندی کر کے ان پانچوں خبیثوں پر تگڑا ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ ان پانچوں کی اصلیت جان لینے کے بعد اسے ان کو مار ڈالنے میں بھی کوئی تردد نہ ہوتا۔ گاڑی کو ریمپ کی ڈھلان کے آخری سرے سے بائیں طرف موڑتے ہوئے اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اول خان کو فون کرنے یا بلانے کے بجائے میں براہ راست اسٹیشن 4 بھی جا سکتا تھا۔ وہاں کا بیشتر عملہ مجھے جانتا تھا۔ باہر سے وہ ایک وسیع رہائشی بنگلہ معلوم ہوتا تھا۔ اندر پہنچنے سے پہلے جم کلارک کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہ ہو پاتا کہ وہ بے خبری میں کیسی بھیانک دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے۔ ہمارے اندر پہنچتے ہی ایس ٹی ایف کے مسلح جوان اپنے بھیانک کھیل کا آغاز کر سکتے تھے۔ غالب امکان یہی تھا کہ غیر متوقع حملے کا سامنا کرتے ہی جم کلارک کے ساتھی حواس باختہ ہو کر بچ نکلنے کی کوشش کرتے اور آسانی سے مار لیے جاتے۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے افسوس ہونے لگا کہ اسٹیشن 4 کی راہ مجھے پہلے کیوں نہ سوجی، لیکن اس وقت بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ میں نے طمانینت کے گہرے احساس کے ساتھ اسٹیشن 4 کی طرف جانے والے راستے پر کار موڑ لی اور رفتار میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اس وقت تک فضا میں گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے عقب نما آئینے میں صرف گاڑیوں کے روشن ہیڈ لیمپس نظر آ رہے تھے۔ کسی گاڑی کو شناخت کرنا ناممکن ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ہیڈ لیمپس کی بلندی اور ان کے کشادہ درمیانی فاصلے سے میں نے بھانپ لیا کہ جم کلارک کے ساتھیوں کے لینڈ روور اور ہماری گاڑی کے درمیان صرف ایک کار حائل تھی۔ جمی لائٹ کے قتل کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ کچھ دیر کے بوجھل سکوت کے بعد ویرا نے سوال کیا۔ جٹ لیگ کی وجہ سے وقت کا تصور گڈمڈ ہو کر رہ گیا ہے، جم کلارک بولا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ واقعہ یہاں کے وقت کے مطابق پرسوں سہ پہر یا شام کو رونما ہوا ہوگا۔ اس نے مجھے کبھی پیار سے بیٹی کہہ کر نہیں پکارا، ویرا دل گداز آواز میں کہنے لگی۔ عملاً مجھے اکلوتی بیٹی کا لاڈ پیار دیتا رہا، لیکن عمر بھر حقیقت سے آنکھیں چراتا رہا۔ کبھی میں اس کو پوجنے لگتی تھی اور کبھی اس سے اتنی نفرت کرنے لگتی تھی کہ اس کا منہ نوچ لینے کو جی چاہتا تھا، لیکن خون کے رشتے اٹل ہوتے ہیں، انہیں حد سے بڑا ہوا اختلاف بھی نہیں مٹا سکتا۔ میرے فرشتوں کو بھی واشنگٹن میں پیش آنے والے خون آشام واقعے کا علم نہیں تھا، لیکن کل میں اداس تھی، میں نے بہت شراب پی تھی۔ خواہ مخواہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ اندر کے اس خالی پن میں ڈینی سے بہت سی باتیں کرتی رہی۔ میرے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی۔ میں نے کل شام پہلی بار کسی مرد کے سامنے اپنی شکست تسلیم کی تھی۔ شاید قدرت مجھ سے وہ سب کہلوا رہی تھی اور میں اپنے رو میں ڈینی سے بہت کچھ کہے جا رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ ڈینی کو اپنی محبت کا ثمر اتنے عرصے بعد ملا۔ جم کلارک نے اس کی بات کاٹ کر بے رحمانہ انداز
में कहा, तुम दोनों का रोमान तो मुद्दतों से चल रहा है। हैरत है कि डैनी ने तुम्हारी सांग दिली से मायूस होकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। शट अप, वीरा ने मुज़म्मल सी आवाज में इसे डांटा। तुम लोगों के नजदीक मोहब्बत किसी तफरीगाह से शुरू होकर बिस्तर पर खत्म हो जाने वाली एक आरजी तलक का नाम है। तुम इकरार और इनकार की नजाकतों को महसूस ही नहीं कर सकते। मादी माहौल की चकाचौंध में तुम इंसानी जज्बों की पहचान खो चुके हो। तुम इस तरह मुझे मतौन कर रही हो जैसे तुम्हारा तलक हमारी बजाय किसी और कौम या सैयारे से हो। जिम क्लार्क ने एहतजाइया के साथ कहा, अमेरिका में अब किसी के पास इतना वक्त नहीं रहा कि दूसरों के जज्बों की छानबीन करता फिरे। वक्त की कीमत डॉलरों में होती है, इसे फजूल कामों में बर्बाद नहीं किया जा सकता। रोमियो और जूलियट वाली सुस्त रफ्तार मोहब्बत के जमाने लद गए। यहाँ रहकर तुम कनूती हो गई हो। अपने माहौल में वापस लौटोगी तो तुम्हारी पुरानी सोच फिर जिंदा हो जाएगी। वहाँ बेहतरीन लोग आज भी तुम्हारी फयाजियों को याद करते हैं। मैंने कल ही इस मट्टी से अपना रिश्ता तोड़ लिया था जो प्यार से खाली है। शायद मेरा वो लाशौरी फैसला दुरुस्त ही था। तुम खुद ही बताओ कि अपने बाप के कत्ल के बाद मेरे लिए वहाँ क्या रखा है। जिमी लाइट की दौलत और हशमत सिर्फ इसलिए थी कि वो शी का सुपर आईमैन था। जिस लम्हे इससे वो एजाज छीन कर इसे खून में नहलाया गया, वो एक आम आदमी के दर्जे से भी नीचे गिर गया। अब वो सब तुम्हारा है। एक दिन यूं ही तुम्हारा सर भी उतार लिया जाएगा। काला धन किसी से वफा नहीं करता, ये इसी का होता है जो इस पर काबज होता है। वहाँ जाकर महरूमियों का अजाब सहने से बेहतर होगा कि मैं कुछ समझौतों के तहत यहाँ रह जाऊँ। यहाँ के मुफलस मैले और जाहिल लोग अब भी मुझे ज्यादा अच्छे इंसान मालूम होते हैं। मैंने इनमें रहकर बहुत कुछ सीखा है। वीरा बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी जैसे रास्ते के बारे में फिक्रमंद हो। मैं वादा करता हूँ कि अमेरिका में तुम्हें किसी महरूमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिमी लाइट तुम्हारा बाप था मगर तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सका। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ लेकिन तुम्हें बेपनाह प्यार दूंगा। मेरे लिए हद से ना बढ़ो जिम। वीरा ने इसकी बात काट दी। तुमसे प्यार करने से बेहतर है कि मैं करेहा सूरत वाला एक बुलडॉग पाल लूं। शायद तुम मेरा वो थप्पड़ भूल गए जो तुम्हारे एक बेहुदा जिसारत के जवाब में तुम्हारे रुखसार को गरमा गया था। मैं इस वक्त भी नताइज की परवाह किए बगैर एक और थप्पड़ रसीद कर सकती हूँ। अच्छी तरह याद है। जिम क्लार्क की आवाज तल्लक हो गई। मैं तुमसे इसकी कीमत जरूर वसूल करूंगा। इन दिनों तुम्हारे सितारे अरूज पर थे, अब मेरा वक्त है। मैं तुमसे हिसाब बेबाक कर लूंगा। इन दोनों की गुफ्तगू में माजी की तलखियां घुलने लगी थी। मैं फौरन ही दखल अंदाजी कर बैठा। मैं अभी तक ये नहीं समझ सका कि तुमने वाशिंगटन में जिमी लाइट के साथ पेश आने वाले वाक़े की तशहीर क्यों की है। दूसरों को इबरत दिलाने के लिए सजा और इंतकाम की तशहीर जरूरी होती है। वो फौरन ही वीरा को भूलकर मेरी तरफ मतवज्जो हो गया। ये ना समझो कि मैं हर जगह इस वाक़े का ऐलान करता फिर रहा हूँ। खानापुरी के लिए FBI वाले इस वक्त भी जिमी लाइट के कत्ल की सरगर्मी से तहकीकात कर रहे होंगे मगर चंद लोगों को अंदर की बातों का इल्म है। मैं इनमें से शामिल हूँ। वीरा का इन हकायक से बाखबर होना जरूरी था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में तुम दोनों के सिवा किसी को जिमी लाइट की जात में दिलचस्पी नहीं होगी। कोई भी शख्स तुम्हारी बात समझ ही नहीं सकेगा। आखिर में फिर सबूत की बात आ जाती है। मान लो कि मैंने तुम्हें असल बात बता के कोई गलती या गद्दारी नहीं की। ये मेरा सोचा समझा फैसला था। ठीक है, वीरा इसे चैलेंज करने वाले अंदाज में बोली। यहाँ लाखों अफराद को इस वाक़े से कोई दिलचस्पी नहीं होगी मगर अमेरिकी कौंसल खाने के अफसरान मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। वाशिंगटन के लिए ये बात बहुत दिलचस्प होगी कि शी वाला जिम क्लार्क कराची में सदर के बारे में क्या कुछ कहता रहा है। वाशिंगटन वालों के पास ऐसी खराबात पढ़ने का वक्त नहीं होता। अमेरिका एक जमहूरी मुल्क है जहाँ हर एक को शख्सी आजादियाँ हासिल हैं। लोग मुल्क और हुकूमत को गालियाँ तक देते रहते हैं। मेरी बात पर तवज्जो इसी वक्त दी जाएगी जब मैं अपनी कहानी के साथ कोई सबूत भी सामने लाऊंगा। बिलफर्ज मेरा कोई हासद तुम्हारी बात को हवा देने पर तुल जाए तो मैं अपने बयान से मुकर कर सारा इल्जाम तुम्हारे साथ डाल सकता हूँ। जिमी लाइट तुम्हारा बाप था। इसके किसी हमदर्द ने तुमको फोन पर खबर दी है कि तुम्हारे बाप को सदर ने मरवाया है और तुम अपने जानने वाले हर अमेरिकी से इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे मुकाबले में शी के सरबराह की बात ज्यादा तवज्जो से सुनी जाएगी। अहम तरीन बात यह है कि अब तुम दोनों को मुझसे समझौता करना होगा। तुम दोनों इसी सूरत में जिंदा रह सकते हो कि मेरे लिए काम करो। मेरे लिए काम करने की सूरत में तुम मेरी किसी हदायत से इनहराफ नहीं कर सकोगे। मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि शी के मुनहरिफीन की सजा सिर्फ मौत है। डैनी की चालाकियां भी इसे नहीं बचा सकेंगी। तुमने बहुत अच्छी तरह अपनी बात वाजे कर दी। मैं स्टेशन 4 पहुंचने तक इसे बातों में उलझाए रखना चाहता था। जिमी लाइट सिर्फ एक नाम बनकर शी
पर राज कर रहा था। इसे किसी ने नहीं देखा था। वीरा ने लाहौर के लाइट्स कॉटेज के एक कबाड़ खाने में पहली बार जिमी लाइट की एक बुसीदा कलमी तस्वीर देखी। तब इसे इल्म हुआ था कि इसका बाप और जिमी लाइट एक ही शख्स के दो रूप हैं। लेकिन तुमने खुद को लोगों से पोशीदा रखने की कोई कोशिश नहीं की। जिमी लाइट बुज़दिल था। इसने दुनिया की सबसे महंगी तफरीह गाहों में आजादी से रंगरलियां मनाने के लिए खुद को पर्दे में रखा हुआ था। मैं सामने रहकर काम करूंगा, मेरे लिए काम ही तफरीह है। दुश्मन बहुत आसानी से तुम्हारी बू पर लग जाएंगे, वीरा ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। वो निहायत आसानी से तुम्हें इस स्टेशन पर पहुंचा देंगे जहां 4 तक गिनती मुकम्मल होने से पहले आदमी मारा जाता है। वीरा के अल्फाज पर मैं चौंक पड़ा। वो मेरे मुंतखब किए हुए रास्तों के बारे में पहले से परेशान थी, लेकिन अब शायद भांप गई थी कि मैं किधर जा रहा था। बज़ाहिर वो जिम क्लार्क से बात कर रही थी, लेकिन इसके अल्फाज में मेरे लिए एक सवाल पोशीदा था। वो स्टेशन 4 के बारे में तस्दीक की ख्वाहां थी। तुम ठीक कह रही हो। मैंने इसी गुफ्तगू के तसलसल में वीरा के सवाल का जवाब दे दिया और बात जारी रखते हुए कहा, देखे बाले सरबराह के मुकाबले में इसरार के पर्दों में लिपटे हुए नामालूम बास की दहशत बहुत ज्यादा होती है। हर शख्स अपने दूसरे साथी से चौकन्ना रहता है कि कहीं वही इसका बास न हो। पुरसुकून और नीम ख्वाबीदा सड़क पर हमारी मंजिल करीब आ गई। इस सड़क पर ट्रैफिक कम था, लेकिन 2 गाड़ियां कदरे फासले से हमारे पीछे लगी हुई थी। गनीमत ये था कि इस वक्त STF की कोई बड़ी गाड़ी फाटक से बाहर मौजूद नहीं थी। मैंने कार की रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। पीछे आने वालों की रफ्तार भी धीमी होने लगी। मैंने गाड़ियां बाएं तरफ मोड़कर फाटक के सामने रोकी और हार्न बजा दिया। ताक़ब करने वाली गाड़ियां रेंगती हुई आगे निकल गईं। इस नाजुक मरहले पर मेरे दिल की धड़कनें अचानक ही तेज से तेज तर होने लगी थी। हार्न के जवाब में स्याहानी फाटक के एक हिस्से में मुख्तसर सी चौकोर खिड़की नमूदार हुई। मैंने इस्तरारी अंदाज में अपनी गाड़ी की कैबिन लाइट जला दी ताकि झांकने वाले को मुझे पहचानने में दुश्वारी न हो। मेरी वो कोशिश बार आवर साबित हुई। चौकोर खिड़की गायब हो गई। वजनी बुलेट सरकने की कदरे तेज आवाज के बाद फाटक अंदर की तरफ खोल दिया गया। फाटक खोलने वाले गनमैन को जिम ने बेआराम निगाहों से घूरा था। अंदर पोर्च में 3 गाड़ियां मौजूद थी, जिनमें 2 जीपें शामिल थीं। STF की तमाम गाड़ियों पर गैर सरकारी नंबर प्लेटें इस्तेमाल की जाती थीं, लेकिन इन गाड़ियों की फौजी साजिदात फौरन तवज्जो का मरकज बन जाती थी। मैंने एक झटके से गाड़ी अंदर बढ़ाई तो जिम क्लार्क ने पहली बार बेचैनी से अपनी निशिस्त में पहलू बदला और दुरुस्त आवाज में गुर्राया, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? स्टेशन 4। मैंने इससे ज्यादा गुर्रा कर जवाब दिया और वो मुझ पर टूट पड़ा। फाटक से पोर्च तक का फासला बमुश्किल चंद सानियों का था, लेकिन इन चंद सानियों में यके बाद दीगरे मुतअद्दिद वाकयात रूनुमा होते चले गए। वीरा चलती कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गई और अव्वल खान को फौरन वहां बुलाने का मुतालबा करने लगी। लान पर सुस्ताने वाले मुस्तैद कारकुन हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। कोई निकर और बनियान में मलबूस था, कोई सिर्फ पतलून पहने हुए था। मुतअद्दिद रंग बिरंगे लिबास भी नजर आ रहे थे। जिम क्लार्क के हमला आवर होने की वजह से स्टीयरिंग मेरे हाथों से निकल गया। गाड़ी लहराकर बरामदे की तरफ चली गई, मगर मेरे पैर भी एक्सीलेटर पर से हट गया। गाड़ी हल्के से झटके से उछली और इंजन बंद हो गया। मैं जिम क्लार्क के देओ एकल वजूद को धकेलने की कोशिश करने लगा। STF के सुस्ताने वाले अहलकारों ने लम्हा भर के लिए इस मंजर को हैरत से देखा, फिर कई आदमी कार की तरफ बढ़ते आए। इस दौरान में जिम क्लार्क मेरे सर पर टक्करें रसीद करके मेरा गला दबोचने की सर तोड़ कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने इसके जबड़ों पर अंधाधुंध मुक्के रसीद करके कामयाब नहीं होने दिया। STF वालों ने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और जिम क्लार्क की टांगे पकड़कर इसे किसी मवेशी की तरह बाहर घसीटने लगे। मेरी तरफ वाली खिड़की में से भी किसी ने पूरी ताकत से इसके चेहरे पर घूंसे मारे। वहशियाना कराहों के साथ जिम क्लार्क ने मेरे शाने छोड़ दिए। टांगों पर होने वाली जोर आजमाई के नतीजे में जिम क्लार्क मुंह के बल गियर लीवर पर गिरा और बिलबिला उठा, लेकिन बाहर वालों के रहम का कोई मुजाहरा किए बगैर इसे बाहर घसीट लिया। सीट से लिपटने की कोशिश में नाकामी के बाद अगर वो अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर न जमाता तो एक जबरदस्त झटके से फर्श पर गिरकर अपने कई दांत गवा बैठता। इस अमर में कोई शुबा नहीं कि जिम क्लार्क गैर मामूली ताकत और जिसामत का मालिक था, लेकिन STF वाले भी अपने काम में ताक थे। तीनों आदमियों ने इसे फर्श पर ही बोचा और इसकी पुश्त पर सवार हो गए। हथियार संभालो। मैं गाड़ी से बाहर निकलते हुए कदरे ऊंची आवाज में बोला, बाहर सफेद लैंड रोवर और सुरमई सिविक में 5 मुसल्ला आदमी मंडला रहे हैं, इन्हें भी घेर कर पकड़ना है। शायद वीरा इस बारे में पहले ही शोर मचा चुकी थी। स्टेशन 4 में अफरा तफरी फैल गई और चंद ही सानियों में हर एक के हाथ में कोई न कोई खुदकार हथियार नजर आने लगा। इस सूरत हाल ने मुझे बुखला कर रख दिया।
मौलैया वहाँ काफी मुसल्लह नफरी दस्तयाब थी, हदफ भी मौजूद था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस को कहाँ मामूर किया जाए। इस वक्त मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि मुनज़्ज़म जंगी हिकमत अमली तैयार करने के लिए पेशा वराना महारत नागजीर होती है। STF के अहलकारों के लिए वो कोई नई बात नहीं थी। एक शख्स ने खुद ही बकिया लोगों की कमान संभाल ली। 3 आदमी अहाते की दीवार की तरफ चले गए, 2 आदमियों को छत पर भेज दिया गया। साहब को फोन कर दिया है, वो घर से निकल रहे हैं। एक शनासा चेहरा मुझे वो खबर देकर मकान के अकबी हिस्से की तरफ दौड़ता चला गया। मेरे लिए ये बात इत्मीनान का बायस थी कि अव्वल खान के मौजूद न होने के बावजूद इसके आदमियों ने मुझे पहचान कर भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया था। अचानक फजा में चंद बौखलाई हुई तहैयर ज़दा आवाजें उभरी। मैं तेजी से पलटा तो जिम क्लार्क किसी तरह अपने हरीफों को जुल देकर भाग निकला था। इसका रुख फाटक की तरफ था। वो पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ एक निकर पोश के करीब से गुजरा और इसने अपनी राइफल की नाल पकड़कर इसे किसी लाठी की तरह जिम क्लार्क के सर पर दे मारा। राइफल का चौबी दस्ता खट की आवाज के साथ जिम की खोपड़ी से टकराया और वो तेवरा कर किसी कटे हुए शहतीर की तरह वहीं ढेर हो गया। इसे दबोचने वाले मजबूत डोरी की लच्छी समेत वहां आ मौजूद हुए और तेजी से इसके हाथ पैर बांधने लगे। इस वक्त तक स्टेशन 4 में जो कुछ हुआ था वो बहुत पुरशोर नहीं था। मुझे तवक्को थी कि जिम क्लार्क के साथियों को अंदर की सूरत हाल का इदराक न हो सका होगा। मेरे लिए वो सूरत हाल नाकाबिले यकीन सी मालूम हो रही थी कि शी जैसी ताकतवर रियासती तंजीम का सरबराह जो अपने प्राइज के सिलसिले में बराह रास्त अपने मुल्क के सदर को जवाब देता किसी हकीर चौपाए की तरह स्टेशन 4 के अहाते में बांधा जा रहा था। मैंने करीब जाकर देखा तो जिम क्लार्क के सर के जख्म से बहने वाला खून इसके बालों में फैलता जा रहा था। इसे बांध कर किसी कमरे में मुकफ्फल कर दो। मैंने इसे बांधने वालों को हदायत दी और सिगरेट सुलगाकर बरामदे की तरफ हो लिया। मुझे फिक्र ये थी कि हम लोग एक मजबूत चारदीवारी में महफूज थे, लेकिन अव्वल खान गड़बड़ की खबर सुनकर इधर आ रहा था। इसे बाहर भटकते हुए 5 भेड़ियों के बारे में नहीं बताया जा सका था। फाटक के सामने अपनी गाड़ी रोकते ही वो इन दरिंदों की किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बन सकता था। रेडियाई आलात और फोन वगैरह की देखभाल पर मामूर ऑपरेटर ने यह बताकर मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया कि इस वक्त अव्वल खान के पास कोई लासिल्की ऑपरेटर्स नहीं था। मैंने फौरन ही इसके घर का नंबर मिलाया तो वो वहाँ से निकल चुका था, यानी इसे खतरे से खबरदार करने की कोई सूरत बाकी नहीं रही थी। मैं इज़्तिरार और परेशानी के आलम में दोबारा बाहर निकल गया। वहाँ वीरा STF के आरफ नामी अहलकार से किसी संजीदा गुफ्तगू में मसरूफ थी। इस वक्त आरफ ही ने जुमला कार्रवाइयों की कमान संभाली हुई थी। मुझे अपनी तरफ आते देखकर वो दोनों खामोश हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। दूरबीनों से इन दोनों गाड़ियों पर निगाह रखी जा रही है। मेरे करीब पहुंचने पर आरफ ने आगाह किया। वो सामने वाली गलियों में एक दूसरे से दूर लैंड रोवर में राइफल की नाल की झलक भी देखी गई है। वो बाहर तैयार हैं और हम अंदर महसूर। ये जमूद कैसे टूटेगा? वीरा ने पूछा। थोड़ी देर बाद इनका सब्र जवाब दे जाएगा और कुछ न कुछ होकर रहेगा, मैंने कहा। फिलहाल मुझे ये फिक्र लाहक हो गई है कि अव्वल खान स्टेशन 4 में अंदर के हालात की खबर सुनकर घर से रवाना हो चुका है। इसे बाहर के खतरे का इल्म नहीं है और ये इसकी गाड़ी में वायरलेस भी नहीं है। आरफ का ख्याल है कि बाहर निकलकर इनसे छेड़छाड़ शुरू की जाए। वीरा मुझे बताने लगी, हो सकता है कि ज्यादा देर होने के बाद वो खामोशी से लौट जाएं और रात की तारीकी में ज्यादा तैयारी के साथ यहाँ अमला आवर हो। इसी वक्त इनकी कमर तोड़ दी जाए तो ये दोबारा इधर का रुख करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो हर कीमत पर जिम क्लार्क को निकाल लेना चाहेंगे। मैंने इसे याद दिलाया, तुम भूल रहे हो कि वो कोई आम आदमी नहीं, शी जैसी ताकतवर तंजीम का नया सरबराह है। एक बार मार खाकर भी वो हिम्मत नहीं हारेंगे, दूसरी बल्कि तीसरी कोशिश भी कर सकते हैं। हाँ, ये फायदा जरूर हो सकता है कि हम लोग एक बार बाहर निकल जाएं तो इनसे छेड़छाड़ के साथ ही अव्वल खान को रास्ते में खतरे से आगाह कर सकते हैं। मेरे जवाब से आरफ खुश हो गया। अभी मैं भी यही सोच रहा था। 2 गाड़ियों में कुछ आदमियों को पूरी तैयारी के साथ बाहर निकालो, मैंने लम्हा भर के तौक़ुफ़ के बाद कहा। इन्हें जिंदा पकड़ना है या मजबूरी हो तो हलाक भी किया जा सकता है? आरफ ने पूछा। पहली सूरत बेहतर होगी, लेकिन इनके फरार से मौत बेहतर रहेगी, मैंने अटल लहजे में जवाब दिया। और हाँ, वीरा इसे रोक कर बोली, पूरी तैयारी का मतलब लिबास की तब्दीली नहीं बल्कि हथियारों और फाजल मैगजीन के ज़खायर से है। जो जिस लिबास में है जल्द अज जल्द इसी में चल पड़े। मैं समझता हूँ मिस, वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला और इनकी तरफ चल दिया और लान की तरफ चल दिया। अब हम दोनों यहाँ बैठकर क्या करेंगे? मैंने वीरा की तरफ देखकर पूछा। इंतजार और बातें। वीरा मेरे शाने पर हाथ रख के बोली, मुझे ये दावा नहीं कि मैं अपने बाप से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसके नागहानी कत्ल की खबर ने मुझे अंदर से खाली और उदास कर
दिया है। घर चलकर अपना गम गलत कर लेना, मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा। बड़े खेल में नुकसान भी बड़ा ही होता है। शायद जिमी लाइट ने सोचा होगा कि वो सदर की किसी कमजोरी का कोई नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर ले तो इसके सहारे उम्र भर शी का बेताज बादशाह बना रह सकता है। इक्तदार की जंग में जिसे तख्त नहीं मिलता फिर इसका तख्ता हो जाता है। शायद तख्त या तख्ता इसी को कहते हैं। इसकी आवाज में उदासी तैर रही थी। शायद मेरे बाप की मौत में जिम क्लार्क का कोई कसूर न हो, लेकिन मैं इससे शदीद तरीन नफरत मुब्तला होती जा रही हूँ। मेरी आरज़ू है कि मैं अपने मकतूल बाप के जान नशीन को अपने हाथों से हलाक करूँ और फिर इसकी बिगड़ी हुई लाश अमेरिकी काउंसिल खाने के आगे डलवा दूं ताकि वो लोग एक बड़े बाप की बेटी का वो रंगीन तोहफा अपने सदर को भेज सकें। वो इनका नहीं, तुम्हारा भी सदर है। मैंने इसे छेड़ा, इज्जत से इसका नाम लो। कुर्सी पर बैठने के बाद कोई किसी का नहीं होता, वीरा तलखी से बोली। इसी वक्त आरफ ने आवाज लगाई कि इसके आदमी तैयार थे। मेरा ख्याल है कि मैं भी इनके साथ जाऊं, मौका पर मौजूद रहकर मैं इनकी कुछ रहनुमाई भी कर सकूंगा। मैंने आरफ की तरफ जाते हुए कहा, फिर मैं अकेली यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं दूसरी गाड़ी में बैठ जाऊंगी, वो भी मेरे पीछे होली। दोनों जीपें रवानगी के लिए तैयार थी। हर जीप में ड्राइवर समेत 3 नफूस थे। मैं अगली जीप में सवार हो गया। वो मुकम्मल आहनी बाडी वाली बंद और महफूज जीपें थी। ड्राइवर के बराबर वाले शख्स के हाथ में लंबे मैगजीन वाली खुदकार राइफल थी जो आनन फानन में हर तरफ मौत ही मौत फैला सकती थी। पिछली सीट पर मेरे बराबर में बैठे हुए निकर पोश के पास लंबी रेंज की राइफल थी जिससे काफी दूर का निशाना लेकर फायर किया जा सकता था। सर, सीट के नीचे से एक कलाशनकोफ आप भी ले लें। बुनियान और नीकर में मलबूस राइफल बरदार ने मुझे मशवरा दिया और मैंने बिला तवक्कुफ इस पर अमल कर डाला। इस दौरान में वीरा दूसरी जीप में गायब हो चुकी थी। दोनों गाड़ियों के इंजन बेदार हुए, फाटक खोले और हेड लैंप्स रोशन किए बगैर इनके रुख मोड़े गए। फिर सब अफराद दूर हट गए ताकि फाटक खुलने पर बाहर से इन्हें न देखा जा सके। फाटक तेजी से खोला गया और मेरी जीप रेंगती हुई बाहर निकल गई, लेकिन वो फुटपाथ का मुख्तसर था। इतना अबूर करके सड़क पर घूमने भी न पाई थी कि आहनी चादर से किसी ठोस चीज के टकराने की आवाज आई और मैं चौकन्ना हो गया। वो यकीनन कोई बे आवाज गोली थी जो जीप की बॉडी के किसी हिस्से में पेवस्त हुई थी। गाड़ी में मौजूद तीनों आदमी तजर्बेकार थे। इन्होंने सूरत हाल का अंदाजा लगाने में जरा भी देर नहीं की। ड्राइवर ने यक बयक रफ्तार तेज कर दी। मेरे बराबर वाले ने अपनी राइफल की नाल का सिरा खिड़की से बाहर निकालकर सड़क के पार वाली गाड़ी में फायर करने का इरादा किया ही था कि फजा किसी राइफल के पुरहोल फायर से गूंज उठी। पहले फायर की गूंज खत्म होने से पहले ही बियाक वक्त 2 फायर हुए और फजा एक इंसानी चीख से लरज उठी। मेरे बराबर वाले ने फायर करने का इरादा मुलतवी कर दिया। मुझे ख्याल गुजरा कि वो फायर शायद पीछे वाली जीप से किए गए थे, लेकिन निकर वाले ने मेरा जहन पढ़ लिया और धीरे से बोला, छत पर हमारे आदमी टेलीस्कोप राइफलें लिए बैठे हैं, इसीलिए दुश्मन का एक आदमी मारा गया है। वो दोनों ही गजब के निशानेबाज हैं। मैंने मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी। फाटक से निकलने के बाद हमारी जीप बाएं तरफ मुड़ी थी जबकि दूसरी जीप दाहिनी तरफ निकल गई थी। इन हालात में वही बेहतरीन हिकमत अमली थी। फजा में लर्जा खेज इंसानी चीख गूंजने के बाद बस चंद सानियों के लिए सन्नाटा छाया रहा। फिर कोई खुदकार राइफल तड़ा तड़ की मुसलसल आवाजों के साथ आग उगलने लगी। इस तवील बरस्ट के दरमियान वक्फे से राइफल भी चलती रही। मैंने अंदाजा लगाया कि जिम क्लार्क के साथ आने वाले जिल्लाहट के आलम में क्लाशनकोफ नुमा खुदकार राइफल के साथ ही बे आवाज राइफल भी इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि स्टेशन 4 के निगहबान सिर्फ दूर मार राइफलों की मदद से इन्हें मार लेने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने इतनी तेज रफ्तारी से यू टर्न लिया कि मैं अपना तवाज़ुन खोकर राइफल बरदार पर लुढ़क गया। जीप गुर्राती हुई आगे बढ़ी। इसके हेड लैंप्स बुझा दिए गए और खतरनाक गली से जरा पहले जीप रोक दी गई। इस दौरान में राइफल बरदार कारतूसों की पेटी के साथ एक थैला अपने शाने पर डाल चुका था। क्लाशनकोफ वाले ने मैगजीन का थैला पहले ही संभाला हुआ था। जीप रुकते ही वो दोनों दरवाजे खोलकर नीचे रेंग गए। मेरे लिए गाड़ी ही में बैठे रहना मुहाल था। मैं भी अपनी क्लाशनकोफ लेकर नीचे उतर गया। इस तवील सड़क के बाकिया हिस्से काफी रोशन थे, लेकिन बल्दिया की बेपरवाही या STF वालों के किसी खास बंदोबस्त की वजह से स्टेशन 4 के कुर्बो जवार में कोई स्ट्रीट लाइट रोशन नहीं थी। इस वक्त तक दूसरी जीप का कहीं पता नहीं था। शायद वो लोग अव्वल खान को रास्ते में रोककर पूरी तरह बाखबर करने के मिशन पर निकल गए थे। मेरे आगे जाने वालों में से एक शख्स एक दरख्त के तने की ओट में बैठ चुका था, लेकिन दूसरा किसी चौपाए की तरह झुककर तेजी से आगे चला जा रहा था। इस दरख्त के पास पहुंचकर मुझे इस पोजीशन की अहमियत का अंदाजा हुआ, क्योंकि वहां से गली में खड़ी हुई लैंड रोवर साफ नजर आ रही थी। इसकी ओट में 2 इंसानी हैवले भी मुतहरक नजर आ रहे थे। मैं उलझा
उलझन में पड़ गया। हमारा आगे वाला साथी कहाँ जा रहा था, लेकिन फिर मैं अपना सर झटक कर रह गया। लैंड रोवर के करीब इस वक्त सुकून था। क्लाशनकोफ के ब्रस्ट की आवाजें दूसरी गली से आ रही थी। शायद मुजरिमों की दूसरी टोली अपनी सुरमई कार समेत इसी गली में मौजूद थी और अपना मैगजीन बर्बाद कर रही थी। नहीं सर, मुझे क्लाशनकोफ सीधी करते देखकर तने की आड़ में बैठे हुए निकरपोश ने मुझे टोक दिया। अभी इनकी सारी तवज्जो स्टेशन 4 पर मरकूज है। वो मुझे अच्छी तरह नजर आ रहे हैं। मैं इनमें से कम एक को जरूर मार लूंगा। मुझे राइफल से पहल करने दें, फिर आप बेशक पूरा मैगजीन खाली कर दें। इसकी बात माकूल थी। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इन हेबलों को पहचानने की कोशिश करने लगा जो लैंड रोवर की आड़ में मौजूद थे। इनमें से एक अगले फेंडर पर राइफल की लंबी नाल टिकाए स्टेशन 4 की छत पर किसी की शिस्त लेने की कोशिश कर रहा था। मुझ पर सूरत अलवाज़े होने लगी। लैंड रोवर वाले बे आवाज राइफल इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि सुरमई कार वाले खुद कार राइफल चला रहे थे, जबकि स्टेशन 4 से सिर्फ राइफलों के फायर आ रहे थे। इस वक्त तक दोनों जानब से खासा बारूद जलाया जा चुका था, लेकिन कुर्बो जवार से किसी ने बाहर आने की हिम्मत नहीं की थी। सड़क पर ट्रैफिक भी यकलख्त मादूम हो गया था। इस धुआंधार फायरिंग को लोग गालबन मोर्चा बंद गिरोहों की बाहमी मुहाज आराई समझकर खुद को इस अंधी लड़ाई का ईंधन बनने से गुरेज कर रहे थे। ठग की गुटी गुटी आवाज के साथ एक महोम सा शोला सफेद लैंड रोवर से स्टेशन 4 की तरफ तैर गया। इनकी राइफल की नाल पर चढ़े हुए साइलेंसर ने फायर की आवाज के साथ ही बेशतर शोले को भी निगल लिया था। फायर होते ही मेरे साथी को अपने शिकार की सही पोजीशन का अंदाजा हो गया और इसने भी गोली दाग दी और फजा एक बार फिर करबनाक इंसानी चीख से गूंज उठी। चीख खत्म होते होते अंग्रेजी में कोई बुलंद आहंग गाली दी गई और मुझे अंदाजा हो गया इस बार CIA का कोई अमेरिकी एजेंट गोली का शिकार हुआ था। निकरपोश ने अपनी राइफल दोबारा लोड करके नाल सीधी ही की थी कि लैंड रोवर एक तेज झटके से आगे बढ़ी और पल भर में हमारी निगाहों से रपोश हो गई। मैंने लैंड रोवर की छोड़ी हुई जगह के रुख पर क्लाशनकोफ का ब्रस्ट मारा, लेकिन कुछ भी ना हुआ। मेरा अंदाजा था कि इनका कोई साथी अगर वहाँ मौजूद था तो वो भी किसी कोने खुदरे में भाग निकले ताकि हम इस गली में दाखिल होकर तफसीली जायजा ले सकें। चंद सानियों तक फरीके सानी का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया तो मेरा साथी गली की तरफ दौड़ पड़ा। इसने किसी तरबियत याफ्ता कमांडो की तरह रुक रुक कर मुख्तलिफ रुकावटों की आड़ लेते हुए और पैंतरे बदल बदल कर अपनी पेशकदमी जारी रखी। मैं भी इसकी तकलीद करता रहा। आखिरकार हम गली के सरे पर पहुंच गए। वहाँ दूर दूर तक किसी मुतनफिस का पता न था, न ही लैंड रोवर का कोई नामो निशान बाकी था। एक महाज खामोश हो चुका था, लेकिन दूसरे महाज पर बहुत तेजी आ गई थी। दोनों तरफ से क्लाशनकोफें चल रही थी, लेकिन इनकी आवाजों में फर्क था। अपने आदमी के हथियार की आवाज पहचान कर स्टेशन 4 के निशानचियों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। शायद इन्हें खौफ रहा हो कि कहीं वो अपने ही साथियों को निशाना न बना बैठे। निक्कर और बुनियान में मलबूस शख्स ने अपनी जेब से टार्च निकालकर रोशन की तो हमें मट्टी में ताजा खून का एक बड़ा सा धब्बा नजर आया। गौर से देखने पर कुचली हुई मट्टी में भी खून नजर आया। वहाँ नजर आने वाले खून की मिकदार काफी ज्यादा थी, जिससे मालूम हो रहा था कि गोली की जद में आने वाले को शदीद जख्म आया था जो जानलेवा भी साबित हो सकता था। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मैंने लम्हों में हिसाब लगाया कि हमारी जीप पर पहला फायर बे आवाज हुआ था। इसके जवाब में स्टेशन 4 की छत पर नस्ब टेलीस्कोपिक राइफलें जाग उठी थी और इन्होंने एक आदमी को चाट लिया था। इसका मतलब ये था कि पहले जख्मी का ताल्लुक भी लैंड रोवर वालों से था। बाद का वाकया मेरा चश्मदीद था। इस हिसाब से लैंड रोवर के खड़े होने के मुकाम के आसपास 2 जख्मियों के खून के 2 वाज़े धब्बे होने चाहिए थे, जबकि वहाँ एक ही धब्बा नजर आ रहा था। अपने जहन की पैदा करदा इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैंने फर्ज कर लिया कि 2 में से एक शख्स को मामूली जख्म आया होगा या गोली इसके जिस्म के पिछले हिस्से को फाड़कर खून बहने का रास्ता बनाकर गुजरने की बजाय किसी हड्डी वगैरह से टकराकर जिस्म ही में रह गई होगी। मेरे साथी ने बहुत फुर्ती के साथ वहाँ का जायजा मुकम्मल किया और हम दोनों सड़क की तरफ दौड़ पड़े। मुझे याद आया कि इधर हमारे सिर्फ एक आदमी था, जबकि दुश्मन की तादाद 1 से ज्यादा थी। भरपूर फायरिंग से भी यही अंदाजा हो रहा था कि बराबर वाली गली के आसपास कम से कम 3 खुदकार आतिशी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे। हम सड़क के रुख पर थे, इसलिए हमें फौरन ही अपने तीसरे साथी की पोजीशन का अंदाजा हो गया। मेरे साथी ने चीख कर कोई कोड अदा किया ताकि अपने साथी को इस सिमत में अपनी मौजूदगी से आगाह कर सके।
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔